السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ روسی حملے کے بعد یوکرین کی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ روسی فوج نے خارسون پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب خارکیف میں بھی بمباری میں شدت آ گئی ہے۔ ایسے میں ہندوستان کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پھنسے ہر ہندوستانی شہری کو جلد از جلد نکالا جا سکے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج کہا کہ ہندوستان نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جنگ زدہ یوکرین سے 1377 شہریوں کو نکالا ہے۔ سوشل میڈیا پر چہارشنبے کی صبح معلومات دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے لکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اب 6 پروازیں ہندوستان کے لیے روانہ ہوئی ہیں، جن میں پولینڈ سے پہلی پرواز بھی شامل ہے۔ یوکرین سے مزید 1377 ہندوستانی شہریوں کو واپس لایا گیا۔ یوکرین میں شہریوں کو نکالنے کے لیے شروع کیے گئے آپریشن گنگا کے تحت ہندوستان اگلے 3 دنوں میں 26 سے زیادہ پروازیں چلا رہا ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگ اور کشیدگی کے درمیان خام تیل کی مارکیٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہندوستان میں گزشتہ 4 ماہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ آج یعنی چہارشنبے کو عالمی معیار کے کروڈ آئل کی قیمت $107 فی بیرل تک بڑھ چکی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ سمیت کئی ممالک میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے، لیکن ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں طویل عرصے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تاہم یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ 5 ریاستوں میں جاری اسمبلی انتخابات کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انڈین آئل کارپوریشن IOCL کے مطابق 2 مارچ 2022 کو بھی قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول $95.41 فی لیٹر جبکہ ڈیزل $86.67 فی لیٹر ہی فروخت ہو رہا ہے۔ یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے کہ 7 مارچ کو اتر پردیش کے آخری مرحلے کے انتخابات کے بعد 8 مارچ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ معروف فلمی نفاذ جے پرکاش چوک سے انتقال کر گئے۔ انہوں نے اندور میں آخری سانس لی۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے اپنے مقبول کالم پردے کے پیچھے کی آخری قسط لکھی تھی۔ وہ کچھ عرصے سے بہت بیمار چل رہے تھے۔ جے پرکاش چوک سے 83 سال کے تھے۔ انہوں نے آج یعنی چہارشنبے کی صبح تقریباً 8:15 بجے آخری سانس لی۔ اطلاعات کے مطابق ان کی آخری رسومات شام 5 بجے ادا کی جائے گی۔ جے پرکاش چوکسے کا چھوٹا بیٹا آدتیہ ممبئی میں رہتا ہے۔ فی الحال ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جے پرکاش چوکسے کے کپور خاندان اور سلیم خان کے خاندان سے بہت گہرے تعلقات تھے۔ ہندوستان میں چہارشنبے کی صبح تک گزشتہ ایک دن میں کورونا کے نئے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7554 نئے کووڈ-19 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ کل کے مقابلے میں 9% زیادہ ہے۔ منگل کی صبح 6915 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ 24 گھنٹوں میں 223 افراد کورونا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز میں لگاتار کمی کے رجحان کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں کووڈ پروٹوکول کو نظر انداز کیا جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے کیسز میں 9% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کورونا وائرس ختم ہو چکا ہے، ابھی بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جنگ زدہ ملک یوکرین کے خارکیف شہر میں گولہ باری میں ایک ہندوستانی طالب علم ہلاک ہو گیا۔ وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ وزارت خارجہ نے ٹویٹ کیا کہ ہم دکھ کے ساتھ توثیق کرتے ہیں کہ خارکیف میں گولہ باری میں ایک ہندوستانی طالب علم کی جان چلی گئی۔ وزارت نے کہا کہ وہ طالب علم کے خاندان سے ربط میں ہے۔ خارکیف میں کئی ہندوستانی ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ معتمد خارجہ روس اور یوکرین کے سفیروں کو طلب کر رہے ہیں تاکہ ان سے پھر کہا جائے کہ ہندوستانی شہریوں کی وہاں سے باحفاظت واپسی یقینی بنائیں۔ روس اور یوکرین میں تعینات ہندوستانی سفیر بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ UNI کے موجب نوین شیکھر اپا کرناٹک کا رہنے والا تھا اور اس نے پیر کے دن ہی اپنے باپ سے ویڈیو کال پر بات چیت کی تھی۔ وہ منگل کے دن میزائل حملے کا نشانہ بنا۔ اڈوپی گرلز پری یونیورسٹی کالج کی 3 طالبات کو جو حجاب کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی ہیں، پریکٹیکل امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ بعد ازاں ایک لڑکی نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کالج حکام پر تنقید کی کہ وہ حجاب کے خلاف نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ الماس AH، ہاجرہ شفا اور بی عائشہ کالج کی 6 لڑکیوں میں شامل ہے جو عدالت سے رجوع ہوئی ہیں۔ تینوں کو گزشتہ روز باحجاب کالج آنے پر پریکٹیکل امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ایک طالبہ نے کنٹرا اور اردو میں ویڈیو پوسٹ کیا۔ اس نے الزام عائد کیا کہ پرنسپل نے انہیں کالج کے احاطے سے بڑی بے رخی سے باہر نکال دیا۔ پرنسپل نے ان کے خلاف کیس کرنے کی دھمکی دی۔ یہ تینوں لڑکیاں حجاب پہن کر گزشتہ روز کالج گئی تھی۔ پرنسپل روزرے گوڑا نے ان سے کہا کہ انہیں حجاب نکالنا ہوگا ورنہ انہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ ہندوستانی طلبہ اور دیگر غیر ملکیوں کو یوکرین کے کیف شہر میں ٹرینوں میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ بات یوکرین کے دارالحکومت کے ووکلس ریلوے اسٹیشن پر پھنسے ایک ہندوستانی طالب علم نے بتائی۔ یہ انکشاف ایک ویڈیو میں کیا گیا جہاں کے ہندوستانی سفارت خانے نے تمام ہندوستانیوں کو فوری طور پر شہر چھوڑنے کو کہا ہے۔ انیش پنڈتا نامی ایک طالب علم نے ویڈیو میں بتایا کہ ہندوستانی طالب علم ہندوستانی سفارت خانے کے مشورے پر ریلوے اسٹیشن آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ
गार्ड्स हिंदुस्तानियों या गैर मुल्की शहरियों को इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया से कहा है कि वो यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों को बाहर निकाले जहां रूसी फ़ौज का हमला हो रहा है। इम्कान है कि फ़िज़ाइया ऑपरेशन गंगा के तहत कई C-17 तैयारे रवाना करेगा। ज़राए ने यह बात बताई। अब तक सिर्फ खानगी हिंदुस्तानी एयरलाइंस यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक रोमानिया और हंगरी से हिंदुस्तानी शहरियों को ला रहे थे। यूक्रेन की फ़िज़ाई हुदूद 24 फरवरी से बंद है। हिंदुस्तान ने 26 फरवरी को अपने तकरीबन 14,000 फंसे हुए शहरियों को निकालने का काम शुरू किया था। फ़िज़ाइया ने एक बयान में कहा कि वो यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों के इनखला के लिए तैयार हैं। C-17 हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट तैयारा है और इसमें इंसानी रिलीफ मिशन के दौरान अंदाज़ा 300 मुसाफिरीन की गुंजाइश होती है। जारी ऑपरेशन गंगा के तहत इनखला की कोशिशों को तेज़ करने के लिए मोदी ने फ़िज़ाइया से कहा कि वो इस अमल में शामिल हो जाएं। फ़िज़ाइया की सलाहियतों के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को मुंतकिल किया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी गुज़िश्ता रोज़ शब मेराज की तकरीब निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में मसाजिद, ज़ियारत गाहों, खानखाहों और इमाम बारगाहों में मेराजुल आलम की मुनासिबत से खुसूसी मजालिस का इनेकाद किया गया। उलमा इकराम और आइमा मसाजिद ने पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली, जबकि नात ख्वानों ने नात या कलाम पढ़े। वादी की मसाजिद, ज़ियारत गाहों और खानखाहों में रात भर जारी रहे पुरनूर और परवकार शब ख्वानी की तकरीबात में सर्दी के बावजूद लाखों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ व तबलीग, दुरूद व अज़कार नात में महूर रहे। इस दिन की मुनासिबत से सबसे बड़ी तकरीब शाहरा आफाक झील डल के किनारों पर वाक़ आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़िद हुई, जहाँ वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब ख्वानी की रूह परवर मजालिस में हिस्सा लिया। दरगाह हज़रत बल में आशिकान रसूल मोए मुक़द्दस के दीदार से भी फैज़याब हुए। रूसी लैंडिंग फोर्स खारक़ैफ शहर में उतर चुकी है, जहां रूसी फौजी अब तक फ़िज़ाई हमले कर रहे थे। यहां रूसी फौजियों और यूक्रेनी जंगजों के दरमियान जंग जारी है। बेलारूस रूस के साथ जंग में आ सकता है। यूक्रेन की वज़ारत दिफा का दावा है कि बेलारूस इनके खिलाफ यूक्रेन में फ़ौज भेज सकता है, ताहम बेलारूस की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। रूस और अमेरिका ने एटमी क़ुव्वतों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इस सब के दरमियान नाटो ने कहा है कि एटमी हथियारों के अलर्ट लेवल को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। खबर रसां इदारे AP के मुताबिक नाटो के सेक्रेटरी जनरल पोलैंड के सदर यूरोपीय सलामती पर बातचीत के बाद कहा है कि हम हमेशा वही करेंगे जो हमारे इत्तेहादियों की सलामती के लिए ज़रूरी है। यूक्रेन नाटो का रुकन नहीं है। नाटो के रुकन ममालिक यूक्रेन को फौजी साजो सामान के साथ साथ इंसानी और माली इमदाद भी दे रहे हैं। जो बाइडन का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब रूस यूक्रेन जंग के दरमियान मुनक़िद किया गया। इसमें जो बाइडन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है। जो बाइडन ने कहा कि जब इस वक्त की तारीख लिखी जाएगी तो रूस को कमज़ोर और बाकी दुनिया को मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन पर पुतिन की जंग छेड़ी गई थी। जो बाइडन ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने तारीख से सीखा है कि जब आमिरों को अपनी जारियत की कीमत अदा नहीं करनी पड़ती तो वो मज़ीद अफरा तफरी फैलाते हैं, फिर वो ये काम करते रहते हैं। इसकी कीमत और ख़तरा अमेरिका और दुनिया को उठाना पड़ता है। जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी मिलकर नाटो के इलाके के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी अवाम पूरी हिम्मत के साथ ये जंग लड़ रहे हैं। जो बाइडन ने कहा कि पुतिन को जंगी मैदान में ज़रूर आगे होना चाहिए, लेकिन इसके लिए इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एप्पल कंपनी ने यूक्रेन की जंग के दरमियान रूस में अपनी मसनूआत की फ़रोख्त रोक दी है। कंपनी ने यह इत्तला दी है। इससे कबल कंपनी ने रूस में एप्पल पे की सर्विस पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा एप्पल ने रूस की न्यूज़ ऐप्स RT और स्पुतनिक को ऐप स्टोर से हटा दिया है। कंपनी की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक एप्पल ने रूस में तमाम सेल्स चैलेंजेस की बरामदात रोक दी है। कंपनी का कहना है कि वो सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और मुतासरा ममालिक की हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने गवर्नर की तौहीन से मुतालिक बीजेपी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ख़वातीन की तौहीन के बारे में बीजेपी कायदीन का इज़हार ख़याल मज़ाक़ ख़ैज़ है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनते ही गुजरात की गवर्नर कमलाबेन को बरतरफ कर दिया गया। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बसवा ईश्वर की बरसरे-आम तौहीन की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का 80% बजट नरेंद्र मोदी की पब्लिसिटी पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की कमेटी ने खुद इस बात की निशानदही की है कि स्कीम की ज़ायद रकूमात सिर्फ शोहरत पर खर्च की जा रही है। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी कायदीन राजभवन को ज़ाफ़रानी रंग में रंगना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर गवर्नर को सियासत में घसीटने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोई भी मसला हो तो राजभवन और लेजिस्लेटर सेक्रेटरीट से रुजू किया जा सकता है। रियासत तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात में रियायत देने के ऐलान के पहले दिन हुकूमत के ख़जाने में
चालानात की अदायगी से 5.5 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। यकम मार्च से 31 मार्च तक इस स्कीम के जारी रहने के ऐलान के पहले दिन अवाम ने रियायत का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए ई चालान वेबसाइट का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में सुबह से लेकर दोपहर तक वेबसाइट का सर्वर मुतासिर हो गया। 1 मिनट में 700 चालानात की अदायगी का सिस्टम कायम किया गया था और इस वेबसाइट के जरिए सैकड़ों अफराद के लॉगिन करने पर इब्तदाई औकात में वेबसाइट काफ़ी दुश्वारियों का शिकार हो गई और अवाम चालानात की अदायगी के लिए मुसलसिल कोशिश करते रहे। बताया जा रहा है कि ई चालान के जरिए पहले दिन 3 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा होने का निशाना रखा गया था, लेकिन तौक़े से ज़्यादा अवाम ने स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए फौरी तौर पर चालानात की अदायगी में पेशरफ दिखाई, जिसके नतीजे में एक दिन में 5.5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। बताया जाता है कि आइंदा दिनों में भी अवाम स्कीम से इस्तेफादा करते हुए चालानात की अदायगी करेगी। पुलिस अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो रियायत के जरिए चालानात की अदायगी स्कीम से 31 मार्च तक भरपूर इस्तेफादा करें। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 11 तलबा का एक बैच मंगल को यूक्रेन से नई दिल्ली पहुंचा। हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहदेदारों की मदद से ये तलबा जंगज़दा यूक्रेन की सरहद पार करके रोमानिया पहुंचे, जहां से बखारसेट से खुसूसी फ़्लाइट के जरिए नई दिल्ली आए। इत्तलात के मुताबिक अनकरीब वो दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स पर तलबा के खैर मकदम के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से दिल्ली और मुंबई से हैदराबाद के लिए एयर टिकट्स की बुकिंग की गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक यूक्रेन से तेलंगाना के तलबा को महफूज वापसी के लिए रियासती हुकूमत मुसलसिल मरकज़ के राब्ते में है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके इब्राहिमपट्टनम में नामालूम अफराद ने रियल इस्टेट के ताजिर और इसके साथी पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में दोनों हलाक हो गए। यह वाक़या कन्नमगुड़ा इलाके में पेश आया। नामालूम अफराद की जानिब से की गई फायरिंग में 40 साला श्रीनिवास रेड्डी बरसर मौका हलाक हो गया, जिसकी रियल इस्टेट के ताजिर की हैसियत से शिनाख्त की गई। इस वाक़े में इसका साथी रघुवेंद्र रेड्डी दवाखाने में दौरान इलाज जामर न हो सका। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदार बशमूल कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत मुकाम वारदात पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। नामालूम हमलावरों ने महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें श्रीनिवास रेड्डी और इसका साथी सफ़र कर रहे थे। इस वाक़े में ज़ख्मी अंबरपेट के रहने वाले रघुवेंद्र ने पुलिस से कहा कि हमलावरों ने इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पुलिस की जानिब से कातिलों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। इब्तदाई तहक़ीक़ात के बाद पुलिस का कहना है कि अराज़ी तनाज़ा इस संगीन वारदात की असल वजह हो सकता है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दवाखाने उस्मानिया की खूबसूरती में इजाफे के इक़दाम को मंजूरी दी गई है और दवाखाने के नए खुली कुतुब शाह ब्लॉक को बेहतर बनाने के अलावा दवाखाने की कंपाउंड वॉल को मुनहदिम करते हुए अस्तर नौ तामीर के अलावा अंदरूनी हिस्से में मरम्मत के कामों और दीगर उमूर को अंदरून 3 माह मुकम्मिल करने की हिदायत जारी की गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से दवाखाने उस्मानिया की खूबसूरती में इजाफे के लिए हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से 63 लाख रुपए के अखराजात के साथ इन कामों को मुकम्मिल करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से दी गई मंजूरी में मौजूदा इमारत को बेहतर बनाने और तारीखी इमारत को दीदाज़ेब बनाने के इक़दाम करने की भी इजाज़त दी गई है और कहा गया है कि दोनों इमारतों को जोड़ने वाली राहदारी को भी बेहतर बनाते हुए दवाखाने के अंदरूनी हिस्से और अहाते में हालात को बेहतर बनाने का मशवरा दिया है। यूक्रेन में जंग की सूरत हाल के बावजूद मोहब्बत कामयाब रही और एक जोड़े ने जंगज़दा यूक्रेन में शादी की, जबकि हैदराबाद में इस्तकबालिया मुनक़िद किया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के और यूक्रेन की लड़की की आपस में मोहब्बत की दास्तान जंग के दौरान शादी में तब्दील हो गई। इस जोड़े ने करीबी रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के साथ 27 फरवरी को हैदराबाद में इस्तकबालिया का अहतमाम किया। प्रतीक और यूक्रेन की लड़की लाइबो ने फिल्मी अंदाज में शादी की। 23 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमले से एक दिन कबल प्रतीक और लाइबो यूक्रेन में ही शादी के बंधन में बन गए। हमले के फौरन बाद वो हैदराबाद मुंतकिल हो गए और इस्तकबालिया का अहतमाम किया। चिलकुर बालाजी मंदिर के सदर पुजारी CS रंगाराजन ने मजहबी रसूमात अदा करते हुए जोड़े को शादी के बंधन में बांध दिया। हैदराबाद में इस्तकबालिया इंतहाई महदूद पैमाने पर थी और इस जोड़े का कहना है कि यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र धूमधाम के बजाय सादगी से इस्तकबालिया मुनक़िद किया गया। इस जोड़े ने 16वीं सदी के कदीम वेंकटेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा की और यूक्रेन में अमन व सलामती की दुआ की। रियासत में अब मोटर गाड़ी वालों को RTA दफातर में इनके काम करवाने से पहले ट्रैफिक चालानात अदा करना होगा। हुकूमत ने अहदेदारों से कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि गाड़ी मालिकान पहले इनके चालानात अदा करें। अहदेदारों के मुताबिक चूंकि मोटर गाड़ी वालों की जानिब से बरसों से ज़ेर-ए-अल्तवा ट्रैफिक चालानात की अदायगी नहीं की जा रही है, इसलिए अब RTA दफातर में कोई भी काम करवाने से पहले इनसे चालानात अदा करने के लिए कहा जा रहा है। करीमनगर में एक मुस्लिम मेवा फरोश की जानिब से हैप्पी शिवरात्रि का बैनर लगाने पर बाज़ फ़िरका परस्तों की जानिब से मेवा फरोश को धमकियां दी गई कि फौरी इस बैनर को निकाल दे, वरना सैकड़ों अफराद इसकी दुकान पर हमला करके इसकी दुकान को बर्खास्त कर देंगे। करीमनगर में कोट इलाके 7 हिल्स पर सैयद असलम मेवा फरोश की ठेला बंडी है।
سید اسلم نے بتایا کہ مقامی پولیس نے شیوراتری کے سبب میوہ فروشوں کو اجازت دی کہ وہ سڑک سے ہٹ کر رات دیر گئے تک کاروبار کریں، جس پر سید اسلم نے اپنی بنڈی پر ہیپی شیوراتری کا بینر نصب کیا، جس پر فرقہ پرست تنظیموں سے تعلق رکھنے والے بعض نوجوان اسلم کے پاس پہنچ کر اعتراض کرنے لگے کہ ایک مسلمان جو کرتا پیجامہ اور ٹوپی پہنا ہوا ہو اور شیوراتری کی مبارکباد دے رہا ہو، یہ ناقابل قبول ہے۔ اس نے تقریباً 1.5 گھنٹے تک میوہ فروش سے بحث کی کہ وہ بینر نکال دے ورنہ اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پر اسلم نے بتایا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے جہاں ہندو مسلم آپس میں مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے عید تہوار پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ایسے میں ہندو تہوار پر مسلم میوہ فروش کی جانب سے مبارکبادی کے بینر سے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حالانکہ اس طرح کا بینر نصب کرنے پر لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے تھی کہ ایک مسلمان شیوراتری کی مبارکباد دے رہا ہے۔ میوہ فروش نے بتایا کہ کریم نگر پولیس کی انہیں تائید حاصل ہے۔ نمائش میں جھولے سے گرنے کے نتیجے میں ایک 12 سالہ لڑکی زخمی ہو گئی۔ یہ واقعہ منگل کی شام پیش آیا۔ ریڈ ہلز کی رہنے والی سیدہ مدیحہ حال ہی میں کینیڈا سے شہر میں مقیم اپنے رشتہ داروں کے پاس آئی تھی۔ منگل کی شام ارکان خاندان کے ساتھ وہ نمائش گئی جہاں چند اسٹالز دیکھنے کے بعد کھیل کے علاقے میں یہ تمام افراد پہنچے اور جھولے میں بیٹھی۔ اسی دوران لڑکی جھولے سے توازن کھو کر گر گئی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئی۔ بیگم بازار پولیس نے بتایا کہ اس کو ارکان خاندان نے دواخانہ منتقل کیا۔ پولیس نے کہا کہ ارکان خاندان نے اس سلسلے میں کسی قسم کی شکایت درج نہیں کروائی۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔